Good morning, students. How are you? Fine. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ r +2 -5 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ -5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਕੋਡ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ -5 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 9x² + 6x - 5। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ a ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -5 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ठीक है ना। मैंने सब तो पहला x1 ਤੇ x2 दो एलीमेंट ले ले रियल पॉजिटिव ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ x1 ਤੇ x2 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਵੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਏ। f(x1) = f(x2)। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x1 = x2 ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ then the function is 1 otherwise function is not 1 अपने को it becomes 9x1² + 6x1 + 5 = 9x2² + 6x2 + 5, ठीक है ना। आप इसनों शफलिंग करांगे, अपने को बन जाएगा 9x1² - x2² + 6x1 - x2 = 0। now it becomes x1 - x2 कॉमन आ जाएगा, फिर it becomes 9x1 + 9x2 + 6 = 0, ठीक है। हुण तुहाडे कोल की बन गया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈਦਰ ਦਿਸ 0 और दिस 0। x1 = ਇੱਕ ਤਾਂ x2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 9x1 + 9x2 + 6 = 0। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, x1 = x2। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ then you can say the function is 1 but this condition is also here। if this condition is rejected in this question then we have remaining only one condition, so the function is 1 if this condition is not rejected then the function is not 1 ਹੁਣ you know x1 ਤੇ x2 ਦੋ ਕੀ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜਾਏ। ਇਟ ਕਾਂਟ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਗੀ। then we have left only one condition, that is x1 = x2। if we take the f(x1) = f(x2) then we come to know that x1 = x2, so this function is 1 ठीक है। जो और इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिविटी चेक होगी इस फंक्शन दी। नाउ वी हैव टू चेक इज दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट ऑन टू। देखो थोनू पता है जेड़ा थोड़ा गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन थोड़ा r +2 -5 to इनफिनिटी जा रहा है। इफ वी हैव टू चेक दिस फंक्शन इज ऑन टू then firstly we take any y belongs to -5 to इनफिनिटी, ठीक है। if we take any y belongs to -5 to इनफिनिटी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ y ਲੈ ਲਿਆ, ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ y, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਚਲੋ y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ x ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ। now we have to prove this x belongs to real positive।
if this x belongs to real positive then the function is onto, if this x is not belongs to real positive then the function is not onto. Here y is any arbitrary point in the set -5 to infinity. ठीक है, it becomes y is equal to 9x square plus 6x minus 5. It becomes a quadratic equation. Now we have to find the value of x. ठीक है, -5 is equal to 0. It becomes a quadratic equation. Then x is equal to -6 plus minus 36 -5 minus y divided by 18. This is the value of x. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ x ਵਿੱਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ -b प्लस -√d डिवाइड बाय 2a। ठीक है, मैंने फॉर्मूला इतने यूज करता। b अपने को कितना 6 -6 आ गया प्लस -b² -4ac। ठीक है, डिवाइड बाय 2a। ठीक है, इसमें जब मैंने सोल्व किया ना, मेरा सोल्व करके ना x की वैल्यू आ गई -1 प्लस √y प्लस 6/3। देखो बच्चे जो थोड़ा फंक्शन है वो कितने तो कितने चल रहा है, रियल पॉजिटिव टू -5 टू इनफिनिटी। हुण जो थोड़ा y है, y अपने को किहड़े सैट दे विच है, -5 टू लेके इनफिनिटी दे विच है। हुण आपां चाहते हैं कि आपां जिहड़ा मर्जी y इस सैट दे विच लईए, जिहड़ा उहदा x आवे, मतलब जिहड़ा उहदा क्वेश्चन आवे, वो किस दे विच होना चाहिए है, रियल पॉजिटिव दे विच होना चाहिए है ना। हुण इन पर्टिकुलर जे मैं y देखो -5 ले लेनी है, मान लो y मैंने -5 ले लिया। ठीक है, जब मैंने y -5 लिता तो इतने पुट किया -5, तो मेरे को 1 बन जाएगा। उस टाइम मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 1/3। एक आ जाएगी x की वैल्यू -1 1/3, मतलब मेरे को आ जाएगा, इसमें सोल्व करके मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी एक 0, एक आ जाएगी -2/3। चलो x की ए वाली वैल्यू तो नहीं बिलोंग करती रियल पॉजिटिव नूं, आपां नूं एक x मिलना चाहिए। x अपने को किहड़ा मिल गया, 0 मिल गया। 0 क्योंकि रियल पॉजिटिव वाले सैट नूं बिलोंग करदा है, क्योंकि इस दे विच सारे नॉन नैगेटिव रियल नंबरस ने। ठीक है, एवें जब तुसीं y की वैल्यू -5 तो थोड़ी बड़ी लोगे, फॉर एग्जाम्पल -4 ले लो, उस दे लिए भी थोड़े को ये वाली जिहड़ी सारी क्वांटिटी है पॉजिटिव आऊगी, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आऊगी। मतलब तुसी की देख रहे हो, हर एक वाई ऑल वाई जिहड़े कि -5 टू लेके इनफिनिटी नूं बिलोंग करते हैं, उन्हां दे लिए एक्स ने जिहड़े वो किहदे विच बिलोंग कर जाणगे, रियल पॉजिटिव च बिलोंग कर जाणगे। तो तुसी की देखिया, दिस फंक्शन इज 1 एज वेल एज ऑन टू। इफ द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू देन द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। If we have the any function which is invertible, then we can find the inverse of that function। हुण आपां उस फंक्शन दा इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरीके नाल करना है मैं तुहानूं वो सिखाऊंगी, प्लीज़ उसनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो। ठीक है, तुहानूं 1 ऑन टू शो करदा। इस दे विच एक तुसीं होर नवीं चीज़ देखी कि जिहड़ा तुसीं फंक्शन नूं ऑन टू करन दा तरीका देखिया ना, वो भी थोड़ा पहलां नालों थोड़ा जिहा अलग सीगा। ठीक है, हुण आपां इस फंक्शन नूं की शो करांगे, ऑन टू। ठीक है, हुण देखो ऑन टू ना मतलब कोई भी मुश्किल कंडीशन नहीं हैगी। थोनू याद ही होएगा, मैंने लास्ट कंडीशन दे विच थोनू एक गल समझाई सी कि मान लो एक एफ फंक्शन है, जे वो ए टू लेके बी तक जा रहा है। ठीक है, इफ दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, देन देयर एग्जिस्ट एक जी मैपिंग विच फ्रॉम बी टू सेट ए सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं थोड़ा इसका मतलब भी समझाया सी भी उरे आई का मतलब क्या, दिस इज योर आइडेंटिटी मैपिंग। इसका मतलब क्या कि तुसी फोग दे विच जे कोई एलीमेंट पुट करोगे ना, उही उसका आंसर आ जाएगा। या फिर जी गोफ दे विच भी जे तुसी जी कुछ भी पुट करोगे, जिहड़ा एलीमेंट उही उसका आंसर आएगा। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग। एंड फोग एंड गोफ, दिस इज अ कंपोजिशन मैप्स ऑफ
एफ एंड जी एंड मैंने इस बारे ना एक कंटिन्यूटी वाली वीडियो है जी फस्ट सैकेंड वीडियो है थोड़ी शायद उस ना मैंने इस बारे डिस्कस किया हुआ है उस चंगी तरह इसनू समझ लो कि ये कंपोजिशन मैपिंग किस तरीके नाल साडे कोल डिफाइंड हुंदी है। ठीक है ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। देखो बच्चे हुण तुसी इसनू 1 1 ऑन टू चैक करन तो बाद इनवर्टिबल होण तक पहुंच गए। हुण मेरे इनवर्स किवें चैक करन जा रही है इनवर्स निकालन दा ना सेम वही तरीका है कि जिवें तुसी किसी भी फंक्शन नू ऑन टू शो कर दो बट इस दे विच आपां पता थोड़ा जिहा स्टैप चेंज करांगे। आपां कहांगे कि कोई फॉर y बिलोंग्स टू -5 टू इनफिनिटी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। आप अपने ऑन टू दे विच ये फर्क सी कि हर एक y वास्ते आप x खुद देखना हुंदा एंड विच भी x रियल पॉजिटिव नू बिलोंग करदा है कि नहीं करदा बट आप वी कम टू नो दिस फंक्शन इज ऑन टू तो आप लिख ही सकते हैं कि जे कोई y इस सैट दे विच हैगा तो उहदे लई x एक इस दे विच पक्का पिया बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑन टू सच दैट y इज इक्वल टू fx भी मतलब y किसी x का की है आंसर है तो x इस दे विच पे है। इस बार अपन चेक करने की लोड़ नहीं बिकॉज अंडर द कंडीशन ऑन टू वी हैव ऑलरेडी चेकड। ठीक है ना ये आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि भी ये फंक्शन ऑन टू हैगा। ठीक है y इज इक्वल टू fx आ गया y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 सिमिलर बिल्कुल सेम जिवें तुसी x की वैल्यू फाइंड आउट की थी आप फिर दोबारा तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे। x की वैल्यू आ जाएगी 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू साडे कोल लास्ट अपने किया सी हुणी थोड़ी देर पहला सोल्व x की वैल्यू अपने कोल की आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट दे विच y प्लस 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है ये तुहाडे कोल x की वैल्यू आ गई है ना। हुण अपने कोल गल आई कि आपां ने उरे तो फंक्शन का इनवर्स किस तरीके नाल फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे जे तुहाडे कोल ना y इज इक्वल टू fx है इसका मतलब कि जे तुसी f फंक्शन दे विच x पुट कर लियो तो उसका आंसर की आ रहा है तुहाडे कोल y आ रहा है तो जिहड़ा उसका इनवर्स फंक्शन होएगा ना इनवर्स फंक्शन च की होएगा भी f दा इनवर्स दे विच जद असीं y पुट करांगे ना उसका आंसर साडे कोल x आ जाऊगा। जिवें f दे विच x पुट करदे हैं जिहड़ा f दा क्वेश्चन है x उसका आंसर y आ रहा है तो जिहड़ा उहदा इनवर्स फंक्शन होगा इनवर्स फंक्शन दे विच की हुंदा है कि जिहड़ा उसका आंसर हुंदा उसका क्वेश्चन बन जांदा जिहड़ा उसका क्वेश्चन हुंदा उसदा आंसर बन जांदा तो f इनवर्स y तुहाडे कोल की आ गया x आ गया। ठीक है इस बारे भी इनवर्स फंक्शन बारे भी मैंने थोनू कंटिन्यूटी की एक वीडियो उस दे विच समझाया है प्लीज़ उसनू पहला एक बार समझ लियो कंपोजिशन ऑफ मैप नू भी समझ लियो जे उस दे विच प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ मेरे नाल डिस्कस कर लियो। ठीक है अपने को आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस दिस और आप ये वाली कंडीशन सिर्फ उदों लिख सकते होंगे आप एवं नहीं कि y इक्वल टू fx है दैन f इनवर्स y इज इक्वल टू x होगा ये सिर्फ आप उस टाइम कंडीशन यूज कर सकते हैं इफ वी हैव द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू मतलब इफ द फंक्शन इज इनवर्टिबल अदरवाइज वी कांट राइट दिस। ठीक है हुण आप x की वैल्यू की लिख देंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 बाय 2। ठीक है तो f इनवर्स x क्या आएगा जो अपने को y है जो आप y वेरिएबल में x विच चेंज कर दिए तो आ जाएगा x प्लस 6 बाय 2। दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन मतलब इसनू जी एक्स भी जी दा मैपिंग दा भी नाम दे सकते हो तुसी ये तुहाडे कोल इनवर्स मैपिंग तुहाडी बन चुकी है। इस तरीके नाल आपां किसी भी फंक्शन दा इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है थोड़ी एनसीईआरटी दी बुक च ना इस नाल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज दे प्लीज़ उन्होंने सोल्व करियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम दैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ठीक है कॉन्टैक्ट करियो फोन करके पूछ सकते हो तुसी या फिर मैनू कोई कमेंट वगैरह च भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। हुण स्टूडेंट थोड़े कोल की है अपन एक कंपोजिशन मैपिंग नाल रिलेटेड क्वेश्चन करन जा रहे हैं। थोड़े कोल एक फंक्शन है जिहड़ा कि A टू B तक जा रहा है तो ये G फंक्शन है जिहड़ा कि B टू लेके C तक जा रहा है तो ये दोनों फंक्शन ना साडे कोल 1 1 दिते हुए ने देन वी हैव टू शो द कंपोजिशन मैप्स ऑफ दीज टू फंक्शन A टू C इज आल्सो 1 1। ठीक है अपन शो करना देखो सब तो पहला थोड़े कोल की हो रहा है
F मैपिंग है फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड G मैपिंग फ्रॉम सेट B टू C। तो इत्थों अपने को ना गोफ मैपिंग बनेगी। मैं तुहानू कह रही हूँ कि इस दे रिलेटेड तुहाडे कोल वीडियो हैगी है, तुसीं इसनू अच्छी तरह समझ लियो उसदे विचों, ठीक है। साडे कोल गोफ मैपिंग बनेगी A टू लेके C। दिस मैपिंग इज 1 1, दिस मैपिंग इज 1 1, वी हैव टू शो दिस मैपिंग इज आल्सो 1 1, ठीक है। अपनी ही चीज अपनी ही शो करना है। देखो बच्चे, जे तुसी गोफ मैपिंग नू 1 1 शो करना चाहते हो तो तुसी की कीता, गोफ दे विच दो एलीमेंट लेके चल पे, x1 इज इक्वल टू गोफ ऑफ x2, ठीक है। जे तुसी गोफ मैपिंग दे विच दो एलीमेंटा दे आंसर सेम लेके चल पे, गोफ अंडर मैपिंग गोफ, एंड इफ वी हैव टू शो x1 इज इक्वल टू x2 then the गोफ मैपिंग इज 1 1। वी कैन राइट इट g of fx1 and g of f of x2, and you know g mapping is a 1 1, it is a given condition। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੈ then these two functions, these two elements are also same, f of x1 is equal to f of x2, and we know that f function is also 1 1। प्लीज एम ही ना सोचो कि f नाल f कैंसल हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये 1 1 करके लिखा जा रहा है। f फंक्शन साडे कोल की है 1 1 है। जे f फंक्शन 1 1 है, जे उसदे विच x1 ते x2 एलीमेंट पाण दे नाल उहदा आंसर सेम है, इट मीनस x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तुसी की देखिया कि जे गोफ दे विच दो एलीमेंट लिखे गए, तुसी देखिया कि वो एलीमेंट खुद भी की ने एंड विच अपने शो करता कि किने सेम ने, देन द फंक्शन गोफ मैपिंग इज 1 1, मतलब कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 मैपिंग इज आल्सो 1 1। इंजेक्टिव मैपिंग दी कंपोजिशन मैपिंग इज ऑलवेज इंजेक्टिव, ठीक है। सैकेंड कंडीशन, हुण अपनी इसी नू जे अपने कोल उरे एफ फंक्शन ए टू बी जी टू आपां नू जे उरे ओन टू भी तां दे ही सकदे ने कि जे हो ओन टू होया देन वी हैव टू शो गोफ मैपिंग इज आल्सो ओन टू। हुण आपां इस नू की शो करन जा रहे हैं कि जेहड़ी साडे कोल गोफ मैपिंग होएगी इट इज ओन टू। देखो बच्चे, तुसीं एक गल समझो, जेहड़ी गोफ मैपिंग है वो साडे कोल ए सैट तो लेके सी सैट तक जा रही है। जे तुसीं इस नू ओन टू शो करना चाहते हो, तुसीं ये शो करना चाहते हो भी इस सी सैट दे विच जे असीं कोई एलीमेंट लीए देन इत्थे कोई इसका कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करना चाहिए जिहदा हो आंसर बन जाए। हर एक सी दे हर एक एलीमेंट वास्ते देयर एग्जिस्ट आ एलीमेंट्स इन सैट ए सो दैट ओदा हो आंसर बन जाए, ठीक है। हुण तुसीं एक गल देखो, मैंने की कीता, सब तो पहला जेड एलीमेंट सी दे विच ले लिया, ठीक है। जद मैंने जेड एलीमेंट सी सैट दे विच लिता, तुहानूं एक गल तां पता है ना कि जेड़ा साडे कोल जी मैपिंग है इट इज फ्रॉम सैट बी टू सैट सी एंड दिस मैपिंग इज ओन टू। जे अपने जेड एलीमेंट सी दे विच लिता तां आपां कह सकदे हैं कि इत्थे वाई कोई एलीमेंट होएगा पक्का बी सैट दे विच, जिसदा जी मैपिंग लगन तो बाद जेड की बन रहा होएगा, आंसर बन रहा होएगा। आपां इह गल कह सकदे हैं ना, जे आपां जेड कोई सी सैट दे विचों लिता देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट g of y is equal to c, मतलब y एलिमेंट दा सॉरी y g of y is equal to z, मतलब y एलिमेंट दा आंसर की बन रहा होगा साडे कोल पक्का z बन रहा होगा, क्योंकि दिस फंक्शन इज ओन टू फॉर एवरी एलिमेंट हियर देयर एग्जिस्ट आ एलिमेंट वन एलिमेंट। तो आप जे आप कह रहे हैं कि इधरों आप z लिता क्योंकि g मैपिंग b तो लेके c तक ओन टू होने करके इत्थे पक्का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिहदा हो आंसर बन रहा होगा। तो g y z किसदा आंसर बन रहा g ऑफ y दा। सिमिलरली जिहड़ी साडे कोल f मैपिंग है वो अपने कोल चल रही है ए सैट तो लेके बी सैट तक। अपन पता लगे वाई एक बी सैट का एलीमेंट है, एफ मैपिंग की है साडे कोल ओन टू है, तो आप कह सकते हैं कि इस वाई एलीमेंट वास्ते देयर एग्जिस्ट एक एलीमेंट एक्स होएगा ही होएगा जिहदा वो वाई एलीमेंट की बन रहा होएगा, आंसर बन रहा होएगा। तो आप कह सकते हैं कि जे साडे कोल वाई कोई बी सैट नू बिलोंग करदा है देन देयर एग्जिस्ट एक्स एलीमेंट इन सैट ए सच दैट वाई इज अ एफ ऑफ एक्स दे इक्वल होएगा बिकॉज द एफ मैपिंग इज आल्सो ओन टू फ्रॉम सैट ए टू सैट बी, ठीक है। उस तो बाद इत्थे आपां वाई दी वैल्यू पुट कर देने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड, थोड़े को आ गया। हुण तुसीं इसनूं किवें लिख सकदे जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। तुसीं की देखिया
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Z ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੋਫ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ X ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੈਟ ਗੋਫ ਆਫ X ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ Z ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਓਨ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਪਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਓ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।